A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. How are you all? I hope you all are fine and you all are revising the topics. So details are given here. I hope the details are properly visible to you all. You can see the date 31, 31st, class, subject, topic. Obviously, I am doing the revisions with you all in this video also. And in terms of the revision, I discussing with you all the chapter Attitude and Social Cognition, where I discuss with you up to the prejudice. So now I have to move further. So today in this video, children, I am going to discuss the new topic with you all, which is impression formation and attribution. This is the topic which I am going to discuss with you all. And this is a topic which belongs to the chapter Attitude and Social Cognition. So basically in your term 2, there are 4 chapters. The chapters are Psychological Disorder, Therapeutic Approaches, Attitude and Social Cognition, and last chapter is Social Influence and Group Processes, where I had started a revision of the chapter Attitude and Social Cognition. Before understanding about the impression formation, let me tell you this is a topic from social cognition, means all about social awareness. Just like a person have to be aware about their physical world, they have to be aware about their social world. Social awareness is also very important part. In terms of the social cognition, these topics you all are going to study about. Okay? So, let's do discussion about these topics. Impression formation. Yeah. Impression formation is one of the kind of a topic which is related to the social cognition, a kind of social awareness. When you interact with the social world, you came across so many people. बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, जुलते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, which is a part of the social cognition. So while doing interaction and communication, you form an impression about someone. ये इस टॉपिक में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है. एक होता है टारगेट और सेकेंड इज द परसीवर. दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड. टारगेट और परसीवर कौन है? टारगेट वो है जिसके बारे में आप इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हो, एंड परसीवर यानी हम जो परसीव कर रहे हैं, द इम्प्रेशन जो फॉर्म कर रहा है वो परसीवर है, और जिसके बारे में हम इम्प्रेशन फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? टारगेट. सो इम्प्रेशन फॉर्मेशन इज वेयर 2 person came, the target and the perceiver, and the perceiver form an impression about the target. Impression मतलब a kind of idea about that particular person कि ये person ऐसा होगा. See, every time whenever we interact with the person, we always find an impression about that person. Either we knows that person or either we don't know. हम हो सकता है उस पर्सन को नहीं जानते हैं अच्छे से, अभी हमने उसको जाना ही नहीं है, we don't know, but जैसे ही एक interaction होता है, we definitely form an impression. This impression firstly form
and it can be determined by so many factors. बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है. सबसे पहला हो सकता है कि द अपीयरेंस. जैसे ही सामने आपको देखा, एक्चुअली द अपीयरेंस ऑलवेज कम द फर्स्ट. वो सामने दिख रहा है तो उस पर आफ्टर लुकिंग द अपीयरेंस वी मेक अ जजमेंट ना. अपीयरेंस से हम सबसे पहले जजमेंट कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद सेकेंड फैक्टर विच इज गिवन इन योर बुक इज द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. उस पर्सन के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द परसीवर. टारगेट के बारे में आपके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी बहुत हद तक डिटरमाइन करता है आपके इम्प्रेशन फॉर्मेशन को. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू टीचर आपके स्कूल में आ रहा है या आ रही है. इट कैन बी द मेल, इट कैन बी द फीमेल. ओके. सो अ न्यू टीचर इज कमिंग इनटू योर स्कूल and you already have some kind of amount of information about that teacher. It can be teacher or it can be student also. Anything you can take it as an example. So अगर उसके बारे में कोई information, suppose किसी और teacher ने, another teacher had given you the information that this subject teacher is coming and this teacher has done this thing. ठीक है. ये डिग्रीज हैं उनके पास या ये एक्सपीरियंस है उनके पास. तो समवेयर यू हैव एन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट डिसाइड योर इम्प्रेशन फॉर्मेशन. ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा. फिर देन द अपीयरेंस ऑल्सो ऑफ द टीचर, दैट ऑल्सो डिसाइड. थर्ड इज द सिचुएशनल फैक्टर विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. सिचुएशन. अब उस टीचर के आने पे क्लास में क्या सिचुएशन बनता है, that also will determine your impression formation. टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है या टीचर बहुत इंटरेक्टिव है, कैसा है, that also decide your impression formation. Then what is the next factor? The perceiver characteristic itself also decide. perceiver यानी कि हम जो perceive कर रहे हैं, हमारी खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करेगी हम कैसे हैं. यूजुअली ये देखा जाता है कि वी फॉर्म एन इम्प्रेशन अबाउट एनी वन अकॉर्डिंग टू वंस ओन परसेप्शन. सबके परसेप्शन अलग होते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग ही इम्प्रेशन फॉर्म करता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स विच डिटरमाइन द इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड इट कैन बी कम इन योर एग्जामिनेशन दैट डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन. Now the process of impression formation you all have to read. प्रोसेस में आपको बहुत सारे उसमें प्रोसेसेस दिए हैं, जैसे कि प्राइमेसी इफेक्ट होता है, रिसेंसी इफेक्ट होता है, हेलो इफेक्ट होता है. देयर आर 3 इफेक्ट्स सीम टू बी. फर्स्ट इज प्राइमेसी. प्राइमेसी यानी पहला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. रिसेंसी यानी बाद में. रिसेंसी में वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन about that person, we spend some time, do an interaction, then we form an impression. That is a recency. Halo effect, we hold only one single favorable या unfavorable characteristics of that person and make a judgment and make an impression कि वो person ऐसा ही होगा, which is somewhere not good. Halo effect सही नहीं होता. ठीक है. रिसेंसी इफेक्ट इज ऑलवेज इफेक्टिव. इट अगेन केम इन योर एग्जामिनेशन. मे भी हो सकता है एग्जाम में आपके ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ जाए कि विच इफेक्ट इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्रेशन फॉर्मेशन. नाउ रिलेटेड टू इम्प्रेशन फॉर्मेशन देयर इज अनदर टर्म विच इज गिवन इन योर बुक इज एट्रीब्यूशन. दिस इज अनदर टर्म, attribution. After the impression formation, the another term is attribution. Attribution, many times we do the attribution. Many times. Always. ज़्यादातर हम attribution करते हैं. Attribution is another term. Attribution means होता है assigning cause to the behavior of a person. कोई भी पर्सन कोई भी बिहेवियर कर रहा है और अगर हम उसको एक कॉज असाइन कर रहे हैं, एक रीजन दे रहे हैं, तो दैट इज वी आर डूइंग एन एट्रीब्यूशन.
For every kind of behavior of the person, we do the attribution internal and external. There are two kind of attribution. इंटरनल, हर एक पर्सन के बिहेवियर का हम कभी उसके इंटरनल को एट्रीब्यूशन करते हैं, कभी एक्सटर्नल को करते हैं. तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है जो एट्रीब्यूशन कर रहा है, कि वो इंटरनल कर रहा है या एक्सटर्नल कर रहा है. जब भी हम ज़्यादातर किसी पर्सन के बिहेवियर को, इफ मोस्ट ऑफ द टाइम if any person's behavior we do the attribution internally, so it is known as fundamental attribution error. ज़्यादातर जब हम attribution internal को देते हैं तो it is known as fundamental attribution error. ये term आपको याद होना चाहिए. It can be come in your 2 marks question. You all have seen the sample paper. The 2 marks question came, 3 marks question came, 5 marks question came. So in the 2 marks it can be asked what is fundamental attribution error. So you require the content to write down. So be prepared that particular topic also. Now there is another term which come under the attribution is actor-observer effect, which is also a very commonly caused question. Actor-observer effect. What is actor-observer effect? In actor-observer effect, there were 2 persons involved. One is actor role and another is observer role. Actor role मतलब कि जो act कर रहा है, वो जो खुद act कर रहा है, और observer role में जब है तो जब हम observe कर रहे हैं, तो हमारा attribution, our attribution change with the actor role and with the observer role. It is psychology. Our attribution change when we are in the actor role and when we are in the observer role. The person is same. It is a very ironical that the person is same. But जब हम actor role में होते हैं तो हमारा attribution कुछ और होता है, और हम जब observer role में आ जाते हैं तो हमारा attribution कुछ और हो जाता है. So जब actor role में होते हैं तो हमारा attribution ज़्यादातर most of the time एक्सटर्नल होता है, और ऑब्जर्वर रोल में जब हम आ जाते हैं तो हमारा जो एट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है, वो इंटरनल हो जाता है. ठीक है. आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. यू ऑल हैव स्टडीड इट अबाउट इट. लाइक इट व्हेन वी रिलेट इट विद द सक्सेस ऑफ फेलियर. सक्सेस ऑफ फेलियर से हम लोग इसको रिलेट करके पढ़े थे एट्रीब्यूशन को, कि अपने सक्सेस के लिए हम इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं, दूसरों की सक्सेस के लिए हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी फेलियर के लिए हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करते हैं, अनदर पर्सन के फेलियर के लिए इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं. तो ये एट्रीब्यूशन हो गया. तो ये 2 टॉपिक तो आपके क्लियर हो गया. सो आफ्टर द एट्रीब्यूशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द impression formation and after having understanding about the attribution, the next topic which you have to discuss is behavior in the presence of other. Yes, obviously our behavior change when other one is present, and it can be understood with a simple example at home also even. ठीक है. घर पे भी अगर कोई और ऐसा पर्सन आ जाता है, एनी स्ट्रेंजर पर्सन और एनी रिलेटिव केम, सो ऑब्वियसली योर बिहेवियर गेट चेंज. ओके, ऐसा होता है ना, बहुत से संस्कारी हो जाते हैं. ठीक है. तो ये भी होता है बिहेवियर चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर. तो दिस इज समथिंग जोक्स अपार्ट बट रियल ऑल्सो. एंड another example that of behavior in the presence of other, see, लोगों के प्रेजेंट रहने पर, लोगों का प्रेजेंट रहना ये इन्फ्लुएंस भी करता है, मीन्स आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस भी कर सकता है और आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज भी कर सकता है. सो बोथ द सिचुएशंस आर देयर. बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैन सोशली फैसिलिटेट, do the social facilitation, or it can do the social inhibition.
Why it is given here the word social? Social word क्यों दिया हुआ है? Social मतलब लोग, जब भी सोशल की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, तो यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, लोगों की बात हो रही है. सो क्या है सोशल फैसिलिटेशन? यानी लोगों के प्रेजेंट रहने पे, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, योर परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड, योर बिहेवियर इम्प्रूव्ड, दैट इज सोशल फैसिलिटेशन. इट इज समटाइम एप्लीकेबल व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एनी कॉम्पिटिशन. ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स में अगर कोई पर्सन कॉम्पीट कर रहा है तो वहाँ पे लोगों के प्रेजेंट रहने पे अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट और काइंड ऑफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द पीपल. पर्सन को एक एनर्जी आती है लोगों के प्रेजेंट रहने पे, सोशल फैसिलिटेशन होता है. सेकेंड होता है सोशल इनहिबिशन. सोशल इनहिबिशन यूजली देखा गया है कि इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द पर्सन ऑल्सो. मान लीजिए कोई सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है लोगों के प्रेजेंट रहने पर, तो उसकी परफॉर्मेंस में डिक्रीज आएगा. दैट इज सोशल लोफिंग. उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होगा. सॉरी, सोशल इनहिबिशन. ठीक है, सोशल इनहिबिट हो रहा है, यानी लोगों के प्रेजेंट रहने पे उसका परफॉर्मेंस जो है इनहिबिट हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है. एक हो गया लोगों के प्रेजेंट रहने पर द प्रेजेंस ऑफ पीपल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर, दैट इज सोशल फैसिलिटेशन. एंड जस्ट अपोजिट टू इट, योर परफॉर्मेंस इज डिक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, दैट इज सोशल इनहिबिशन. Like sometimes if any person is feeling fear of speaking publicly, तो उस पर्सन को क्या होगा, फियर होगा, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो वो काफ़ी लोगों के सामने नहीं बोल पाएगा, प्रेजेंट नहीं कर पाएगा. ऑल्दो वो पर्सन बहुत एक्सपर्ट है, बट उसे फियर है तो वो नहीं बोल पाएगा. Similarly, the another term which is related to it is social loafing. Social loafing क्या होता है? It is a very interesting phenomena. जब लोग के प्रेजेंट रहने, ये सारा चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? The presence of behavior, sorry, the presence of your behavior in the presence of other. तो आपका बिहेवियर क्या होता है लोगों के प्रेजेंट रहने पे? आप कभी कभी सोशल फैसिलिटेशन करते हो, कभी आप सोशल इनहिबिशन होता है, समटाइम्स सोशल लोफिंग भी होता है. सोशल लोफिंग मतलब क्या है? रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन वर्किंग इन अ ग्रुप. जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो एफर्ट जो होते हैं हम कम लगाते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाता है. सो दैट इज अ सोशल लोफिंग. सोशल लोफिंग कई रीजन से होते हैं. इट इज गिवन इन योर बुक. व्हाट आर द रीजंस ऑफ द सोशल लोफिंग? हाउ इट कैन बी रिड्यूस, कैसे रिड्यूस हो सकता है? सबसे पहले तो हमने अभी जाना कि सोशल लोफिंग क्यों होता है, क्योंकि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमें ये लगता है द मेंबर्स फील दैट द अदर विल डू द वर्क, व्हाई शुड आई पुट द 100%. सो फॉर दिस यू कैन डू दैट, इंडिविजुअल एफर्ट को ज़्यादा मोटिवेट करो इन कंपैरिजन टू द ग्रुप एफर्ट. इंडिविजुअल मेंबर्स को हाईलाइट करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन योर स्कूल इवेंट ऐसा होता है कि योर क्लास बोर्ड, यू आर रिप्रेजेंटेटिव बाय योर क्लास बोर्ड. ठीक है, आप अपने क्लास बोर्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हो कि इस क्लास का बोर्ड, दिस क्लास बोर्ड इज वेरी गुड, इज वेरी एक्सीलेंट, एंड दिस क्लास बोर्ड इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड. उससे रिवॉर्ड मिल रहा है. यू गो ऑन द स्टेज, योर क्लास इज रिवॉर्डेड, not you. Instead of rewarding the class, if the reward class is given the reward, but there is something additional also, like in the whole class which student have put more effort, किसके articles सबसे ज़्यादा है, किसने सबसे ज़्यादा articles बनाए, that person, particular person should be awarded. So don't you think that everybody would put their effort? उनको लगेगा कि नहीं हमें उसके लिए अवार्ड मिलेगा, तो हमें भी अपना एफर्ट डालना चाहिए. सो दैट इज अ सोशल लोफिंग विच कैन बी क्योर्ड, विच कैन बी कर्ब्ड, विच कैन बी रिड्यूस्ड विथ सो मेनी थिंग्स. मोटिवेशन,
ठीक है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, वी शुड हैव अ कॉपरेशन रेदर देन नहीं कॉम्पिटिशन्स उसमें लाना जिससे लोग कॉम्पीट करेंगे और इंडिविजुअल एफर्ट दिखेगा. सो बहुत सारे रीजंस हैं, देयर आर सो मेनी रीजंस विच आर गिवन इन योर बुक विच यू कैन रीड. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज pro-social behavior. Pro-social behavior is also one of the behavior means helping the needy and without thinking anything in return. That is a pro-social behavior. Pro-social behavior मतलब वो होता है कि आप कोई behavior कर रहे हो बट किसी की हेल्प आप कर रहे हो बट ये नहीं सोचना कि वो भी आपकी हेल्प करेगा फ्यूचर में. There should not be any kind of give and take system कि आपने हेल्प की तो वो भी आपकी हेल्प करेगा. तो that is not a pro-social behavior. There are so many factors which influencing the pro-social behavior. Pro-social behavior होगा या नहीं होगा, ये बहुत से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं. कल्चरल फैक्टर भी एक फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है प्रो-सोशल बिहेवियर को. जिस भी कल्चर में आप रहे हैं ना, आपकी पर्सन की जो लर्निंग है, पर्सन की जो अपब्रिंगिंग है, वो भी डिसाइड करती है कि वो प्रो सोशल बिहेवियर करेगा कि नहीं. देयर आर वेरियस फेमस पर्सन्स हु आर नेम्ड टू गिव द प्रो सोशल बिहेवियर लाइक मदर टेरेसा, बाबा आमटे, इनके नाम है जो कि प्रो सोशल बिहेवियर करते हैं. अ बिहेवियर वेयर यू हेल्प समवन बट नॉट थिंकिंग एनीथिंग इन रिटर्न, that is a pro-social behavior. There are some words which is given in your book which is written in the bold letters, so you should be very much serious about that one, like diffusion of responsibility. Pro-social behavior बहुत से कारणों से नहीं होता, जैसे कि बाई स्टैंडर्ड अगर ज़्यादातर लोग खड़े हैं देख रहे हैं तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. मतलब हमें ये लगता है कि सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इतने लोग तो खड़े हैं, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदद करने की, मैं ही क्यों मदद करूं. सो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये और बाय द प्रेजेंस ऑफ बाई स्टैंडर्ड प्रो सोशल बिहेवियर नहीं दिखता. सो ये पूरा दिस होल चैप्टर is all about attitude and social coordination, and from this your whole chapter is completed. Pro-social behavior. इनके अलावा और भी there are so many reasons are given for the pro-social behavior, okay, which you can read it from the book. So with this, I already told you that you can read it from your book, and with this chapter is also completed. I had done with you the revision of this chapter. I hope whatever the things I had discussed with you today, children, in this video, you all are able to understand it properly. Still, if you find any doubt regarding any of the topic which I had discussed with you, I discussed with you about impression formation, I discussed with you about attribution, social facilitation, social inhibition, social loafing, and pro-social behavior. After watching the video, if you find any doubt, you please discuss with me in the classroom. Okay children, thank you so much for carefully listening and observing this video. Thank you so much children. And I hope you must watch the video and keep yourself revising the topics and give your examination with 100%. And
keep revising, children. I just say keep revising the things. Revisions are very important for you all. The more and more you revise, the better will be your performance. Okay? Thanks a lot.